हेलो ये सर ये कॉर्डलेस है जी ठीक है जी बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आपकी यहाँ आमद का ये कॉर्डलेस लगा दिए नीचे रख रखने सर रखने बैठ जाए ना छोड़िए बैठ जाए बाद में कल करूँगा मैं बैठ जाए जी बहुत शुक्रिया मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं सो आई विल स्पीक इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश सर आजे सो दैट थोड़ा everybody present here सर कुर्सी है आजे can follow what happened. डॉक्टर साहब इधर So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. But that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time
getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusted assault on the election on the other. So during the night, in my case, for instance, in A128 Lahore, throughout the day, the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I'd gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning, when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video that was when I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me, and my wife was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February, which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now, I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form, we've done a detailed analysis, compared the results with the Provincial Assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work, and it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the pmln, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है।
मेरे हल्के में NA1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले में कोई झूठ डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद है। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। Thank you so much, सलमान भाई. Now next, यहाँ हम अपनी बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मौजूदगी में जो जंग लड़ी है, अपनी बहन के साथ पेश करता हूँ। Assalamualaikum ji. खामोशी। Please, Alima Abba, thank you so much, and Usma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त वहाँ से बोलेगा, नीचे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं गाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर योर ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी अयाज साहब, प्लीज। Now, what were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA58? NA58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Nani tha, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results,
the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PDP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labad got 25,000 votes, and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard, and they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे results leading. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger fast than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise. Be it successful some time. Candidates who have got affected, each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirafzal bhai. Thank you. And we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे आयरन लेडी रेहाना अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी. और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से आप लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं. इस हसन इकबाल ने ख्वाजा असर से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं. मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी. मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी, खौफ के पुत मैंने तोड़ दिए, और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली, और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया. देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया, और माँ के साथ खड़े हो गए. वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था. शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं. शहर सियालकोट इमरान खान का है. मेरा तो दीन का रास्ता था. मैं जुल्म के खिलाफ डट गई. मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए. इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर
माँ की तौहीन ना की जाए। वो युवती थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही मुहाफ़िज़ थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तलक नहीं था तो मेरे पर जुल्म था, मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी इलेक्शन का मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे हाजा सकते सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 है। 350 ये माँ जी के 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं खाजा आसफ को कहीं इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के पास आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ली। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर साथ, मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा मरोड़ के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिरी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त खाजा आसफ साहब के वो असल इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिन सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरओ इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरओ ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहे तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं।
ये जलसा नहीं है। मेहरबानी करें, तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ में फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है। मेरी इस्तेदा है कि सिर्फ मुतासिरा एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना ज़ाहिर राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्रीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तेदा है एक दफा फिर कि यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया गया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट वेकेट कर दे तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम जी अब हम नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट समान और रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे, सबको मिल रहा है। परम शेर समान और रविस्तान मैं आपसे कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। तो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे नाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एमक्यूएम को शहर कराची के अंदर एक तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेके 13 लाख वोट जो है वो कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपको खाली 3 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खाकर हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे जमाना जो सियासी जमात एमक्यूएम जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे पास नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, टीएलपी चौथे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। तो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300
NS 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था बस टाइम जी बहुत कम है प्लीज जी आई नो जी सो NS 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए 78,000 मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया आधी रात को उसको हटा दिया आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया तो ये हाल है कराची शहर के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें थैंक यू वेरी मच टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा हमारे पास टाइम कम है इंटरनेशनल मीडिया है इनका टाइम बड़ा कीमती है ये अपने स्पीचेस न करें प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 में आपके कितने वोट थे 47 में आपको कितने वोटों से और आएगी सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ देखिए सिंध से कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है शिकस्त में बदल दिया मैं आपको अपने मेरे 4,167 वोट थे पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए ये आरोप और उनके साथ जो माफिया था उन्होंने ये जुल्म ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए ये चोर ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है इनको आगे ना आने दे शुक्रिया तमाम स्पीकर अपना तारुफ कर रहे हैं ये अरबिस्तान थे हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में अब सैफुर रहमान साहब बात करेंगे नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम सैफुर रहमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 फॉर्म मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं खाता हूँ कि ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल MQM के जो कैंडिडेट है मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं वो ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं आप कुरान उठा ले मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है तो वो मुस्कुराने लगा मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने जिसे आप मैनेज कर रहे हैं ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके के वर्करों पर कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई मेरे हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे दंगे फसाद हुए उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने फॉर्म 45 हासिल किया और कराची NA 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको पाकिस्तान जिंदाबाद इसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद सती साहब उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब शुरू करें और फिर हमारे इस्लामाबाद से शुएब शाहीन साहब जो रिप्रेजेंट
चलें शुरू करें सर, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक एसपी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया किसको वोट दो, और भाई तुम तुम्हारी कंपेयर कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा उनको मुबारक देने आ जाता है। कंपेयर तो तुम मेरा कर रहे हो, मेरी बारी है, अपने साथ तो इस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी है, तो मुझे चलानी है। मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN इसके बाद मेरी बारी है, वीडियो चलानी है, 616 और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान का है, वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान का है, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सोहेल जो कि नूर लीग का था। मलक सोहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई, आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों SMD खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड पे बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से सारे। शाबाश, जल्दी हटें। बिस्मिल्लाह नजर आ रही। खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह, स्क्रीन से नीचे उतरे। चलें। हेलो 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 हेलो, बस खत्म हो गया। हेलो यार, माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो हेलो हेलो, मैं स्टेज पे चला जाता हूँ। चलिए, आपको आवाज आ गई। इसको पास लो। हेलो, नहीं, आप वैसे हेलो हेलो, आपको मेरा तो पता है ना, 104 वोटों का डिफरेंस। हेलो, एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले। ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें। ये आपकी वजह से आपस भी बना है, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे। आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा NA163 था, वो मैं आपसे पूछता हूं, इलेक्शन था या धांधला था? जब ये धांधला था तो फिर इस धांधले के पीछे कौन है? और जो जीते हुए लोग हैं उनकी शक्लें देखें, और जो हमारी शक्लें, हम जीते हुए हैं वो हारे हुए हैं। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब इस तरह के इलेक्शन हो जिसमें हर चीज़ जरदारी साहब के हवाले हो,
تو مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ چوتھی بار اس کو سندھ دے دیا گیا ہے. چوتھی بار یہ چوتھوں دفعو آصف زرداری صاحب کے سندھ ڈنی ویا. چھو اسا سندھی یتیم آیوں، اسا سندھ وارا یہ آیوں جو اسا پانچے حقن لائے نتا وڑی سگوں. اسا پانچے حقن لائے لڑنا سے. اسا 15 سال ہن ظالمان نظام ہن سامراج جی مخالفت کئی ہے پیر صاحب سنگت جی. ہن الیکشن کے اسا رد کیوں تھا، تمہاں رد کیوں تھا یا نہ؟ اسا چاہیوں تھا تو یہ بوگس الیکشن جیکا سندھ جے عوام جے متھا مڑی وئی آ انہیں کے ختم کرے نئے سرے الیکشن کرائی وجیں. ورنہ احتجاج جو سلسلو ختم نہ تھیندو زرداری صاحب. مت سمجھے تو ماں اسمبلین میں قسم کھنی وری بھی عشرت کندس نہ کرن ڈیندا سے عشرت. اسا پانچے حقن جے لائے پیر صاحب پگارے جی قیادت میں ہم اپنی جدوجہد کے لیے صاحب پگاروں کے ساتھ ہیں. جب تک سندھ کو حقوق نہیں دلائیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے. باقی وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جیت کے آئے ہیں خوش قسمت ہیں تو ہم مزاحمت کریں گے پوری طرح سے. یہ جعلی مینڈیٹ ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اور یہ سلسلہ اب چل پڑے گا، بند نہیں ہوگا. زرداری صاحب عیاشیاں ہو گئیں، ختم ہو گئیں عیاشیاں. میں پیر صاحب صدر الدین شاہ سے یہ میں التجا کرتا ہوں کہ سندھ کے لوگ آپ کی قیادت کے لیے بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. ظلم دیکھیں کہ لوگ بھی ہمارے مارے جا رہے ہیں، ایف آئی آر بھی ہم پہ کٹ رہی ہے. کاٹو، کتنی ایف آئی آر کاٹو گے؟ ان سب پہ ایف آئی آر کاٹو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آخر میں سب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں، لیکن جس طرح سے آج یہ لوگ میں نے دیکھے ہیں تو میری تو خوراک ہو گئی. میں تو خوش ہوں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. مہربانی. یہ تھے لیاقت علی خان جتوئی صاحب. اور اب میں دعوت خطابت دوں گا ایک اور ایکس منسٹر چیف منسٹر ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب کو کہ وہ